وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 7,573 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 14,460 ارب روپے۔ ٹیکسوں کا ہدف 9,200 ارب مقرر۔ ٹیکس آمدن کا 80% قرض ادائیگی پر جائے گا۔ سود کی ادائیگیوں پر 7,300 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صنعتی شعبے پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ترقی کا ہدف 3.5% رکھا گیا۔ کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ۔ معیاری بیج کی درآمد پر تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم۔ فارن ایکسچینج کے ڈیٹ اور کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز۔ کارڈ سے فارن ایکسچینج کی ادائیگی پر ود ہولڈنگ ٹیکس 1% سے بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز۔ نان فائلرز مشکل میں پڑ گئے۔ بینک سے 50,000 نکالنے والے نان فائلر کے لیے ٹیکس میں اضافہ۔ 50,000 روپے سے زائد کی رقم نکالنے پر 0.6% کی شرح سے ٹیکس عائد۔ ڈالر ایمنیسٹی اسکیم کی منظوری۔ $1,00,000 لانے پر آمدن نہیں پوچھی جائے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بڑا ریلیف۔ ترسیلات زر کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر 2% ٹیکس ختم۔ سالانہ $50,000 سے زائد ترسیلات زر بھیجنے والوں کو ڈائمنڈ کارڈ جاری ہوگا۔ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے وارے نیارے۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود تنخواہوں میں 35% تک کا اضافہ۔ گریڈ 16 تک ملازمین کی تنخواہیں 35% بڑھیں گی۔ گریڈ 17 سے 22 تک کی تنخواہوں میں 30% اضافہ ہوگا۔ پینشن میں 17.5% اضافہ تجویز۔ کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 روپے۔ حکومت نے کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی۔ چیلنجز کے باوجود حکومت نے 2,709 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ دے دیا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,150 ارب روپے ہوگا۔ پی ایس ڈی پی پر 950 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 1,559 ارب روپے مختص۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا گیا۔ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے لیے 267 ارب روپے دیے جائیں گے۔ پانی کے منصوبوں پر 100 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ زراعت کی ترقی حکومت کا ہدف۔ بڑا ریلیف دے دیا گیا۔ زرعی قرضوں کے لیے رقم 1,800 سے بڑھا کر 2,250 ارب روپے کر دی گئی۔ 50,000 زرعی ٹیوب ویل کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے 30 ارب روپے مختص۔ چھوٹے کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ سولر پینل کے خام مال اور مشینری پر ڈیوٹی ختم۔ ٹیکسٹائل، رنگ اور دیگر خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم۔ لنڈے پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم۔ صحافیوں اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ۔ پہلی مرتبہ ورکنگ صحافیوں کو مفت میڈیکل سہولت ملے گی۔ بجٹ میں اعلیٰ تعلیم اور لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے خطیر رقم مختص۔ حکومت کا نئے اسٹارٹ اپس کے لیے نوجوانوں کو قرض دینے کا فیصلہ۔ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی درآمد پر ٹیکس ختم۔ $24,000 تک سالانہ ایکسپورٹ پر فری لانسر کو گوشواروں اور ٹیکس سے استثنا۔ بجٹ 2023-24 فیصل آباد جھنگ اور چنیوٹ چیمبر آف کامرس میں تقریر سنی گئی۔ تاجر برادری نے بجٹ کو متوازن بجٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کچھ ریلیف نہیں ملا مگر ٹیکسٹائل پر کوئی بھاری ٹیکس بھی نہیں لگا۔ سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈاکٹر سجاد ارشد کا کہنا ہے سولر پر سبسڈی قابل تحسین۔ آئی ٹی سیکٹر میں سبسڈی بھی خوش آئیں۔ بجٹ میں تعمیراتی شعبے سے متعلق پالیسی واضح نہیں۔ ایس ایم ای سیکٹر کو سب سے زیادہ سبسڈی کی ضرورت ہے۔ سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے کاشف ضیاء کہتے ہیں معاشی بحران میں حکومت نے ایکسپورٹ سیکٹر پر نیا ٹیکس لاگو نہیں کیا تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا ریلیف ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر اور بوجھ ڈالا جائے، یہ کیونکہ یہ پہلے ہی بہت زیادہ اس وقت آپ ان کی گروتھ دیکھ لینا -2.94 ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو یہ ان لوگوں پہ یہ چیزیں اس میں ایلیبوریٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹیکس کن سے وصول کیا جائے گا۔ ادارہ نہیں ہے جہاں سے فورن ریمیٹنس آنی ہے، اس کے اوپر نہ بجلی کے اوپر کوئی سبسڈی، نہ گیس کے اوپر کوئی سبسڈی، نہ ہی گورنمنٹ نے اس کا کوئی وعدہ کیا ہے۔ جو ہمارے ریفنڈز پھنسے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف، اس کے اوپر بھی کوئی واضح انہوں نے پالیسی نہیں دی ہے۔ مالی سال 2023-24 کا بجٹ۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری میں اجلاس۔ آفتاب بٹ اور دیگر کاروباری شخصیات شریک۔
उधर टोबा की ताजे बरादरी ने बजट अवाम दोस्त करार दे दिया। ताजे बरादरी का कहना है वफाकी हुकूमत की जानिब से मुश्किल हालात में पेश किया गया बजट ताज़ा हवा का झोंका है। मुस्लिम लीग नून के जिला सदर और कारोबारी शख्सियत अमजद जावेद ने अपने दफ्तर में बजट सेशन देखा। उमर फारूक बाजवा ने बजट खुश आइंद करार दिया। उनका कहना था बजट मतवाजन है, अवाम को रिलीफ मिलेगा। जिन्होंने अपनी जादूगिरी दिखाई है, मैं नहीं समझता कि ये तकरीबन 100% आवाम दोस्त बजट है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को राम किया जाए, खुसूसन टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, जो गरीब लोग हैं उन तक जो पहुंचे। निगरान पंजाब हुकूमत बजट पेश करने को तैयार। 4 माह के बजट से अवाम की लंबी उम्मीदें इस्तवार। तरक्याती बजट के लिए 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 300 अरब रखने का इम्कान। फैसलाबाद के शहरियों ने निगरान हुकूमत पंजाब से अवाम दोस्त बजट पेश करने का मुतालिबा कर दिया। शहरी कहते हैं पंजाब हुकूमत टैक्स फ्री बजट पेश करे। ठंडी हवा का झोंका लेना मुश्किल हो गया। गर्मी बढ़ते ही एयर कूलर की कीमत में इजाफा। झंग के दुकानदारों ने भी खरीदारों का रश देखकर तेवर बदल लिए। एसी तो दूर, एयर कूलर भी मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबके की पहुंच से बाहर हो गया। डॉक्टर्स की हड़ताल का 8 रोज बाद इख्तिताम। मरीजों की मुश्किलात हुई तमाम। हॉस्पिटल में रश बढ़ गया। मरीजों का कहना है शुक्र है इलाज की सहूलत मिलना शुरू हुई। गलत ऑपरेशन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने फैसलाबाद के इंडिपेंडेंट अस्पताल में तमाम इमराज की सर्जरी पर पाबंदी आयद करके नोटिस अवेजा कर दिया। जंग के बड़े हॉस्पिटल की सुनी गई अपग्रेडेशन के लिए 17 करोड़ रुपए जारी। एमएस डॉक्टर शहाब के मुताबिक रकम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पुराने वार्ड्स और डॉक्टर्स रूम समेत अपग्रेडेशन का दीगर काम होगा। जंग में टोबा रोड की बहाली का काम शुरू। 2 मकामात पर 60 फुट से जायद बड़े पैच लगेंगे। 24 इंच तक ऊंचा किया जाएगा। महकमा हाईवे ने काम का आगाज कर दिया। उधर जंग गोजरा रोड की तामीर के दूसरे फेज पर भी काम जारी। तहसील गोजरा की हुदूद में आने वाली 20 किलोमीटर सड़क की कारपेंटिंग शुरू। गोजरा के मुसाफिरों की मोटरवे तक रसाई आसान हो गई। फैसलाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस के हवाले से इजलास। सदारत कमिश्नर सिल्वर सईद ने की। सेक्रेटरी आरटीए ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का कहना था कंसल्टेंट की खिदमत हासिल और मुतल्लिका टीओआर्स बनाए जाएं। पहले से नोटिफाइड रूट्स पर विंग्स के स्टाफ मुकर्रर किए जाएं। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदान इरशाद की जेर सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का इजलास। किराया नामा पर अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। रंग गोरा करने वाले हो जाएं खबरदार, होशियार। क्रीमें जिल्द के लिए मुज़र सेहत करार। जिल्द का कैंसर, एलर्जी, जलन जैसी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। WHO की निशानदही पर महकमा हेल्थ ने अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद में महकमा सेहत की नाअहली। जिला भर में 2100 हजामों और ब्यूटी सैलून की इंस्पेक्शन न की जा सकी। महकमा हेल्थ ने रिपोर्ट जारी कर दी। सार्फिन के मसाइल दूर होने में घंटों लगने की बड़ी वजह सामने आ गई। फेस्को में लाइन स्टाफ का शदीद बहरान। कंपनी में 9000 से ज्यादा असामियां खाली असामियों में लाइन मैन, असिस्टेंट लाइन मैन, बिल डिस्ट्रीब्यूटर और मीटर रीडर्स शामिल। उधर जंग में 5 माह में 1100 से ज्यादा बिजली चोर पकड़े गए। फेस्को ने तमाम बिजली चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर 7 करोड़ 26 लाख रुपए की रकम रिकवर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कल अदम करार दे दिया। उम्र कैद का मुलजिम अदम शवाहिद पर बरी। फैसलाबाद के एडिशनल सेशन जज तारिक सलीम ने कैदी को मनशियात के जुर्म में 2011 में उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा दी थी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सानहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों और प्रोसिक्यूशन के अमल का जायजा लिया गया। मजीद साइंटिफिक अंदाज से 1000 से ज़ायद शरपसंदों की शिनाख्त का अमल शुरू। वज़ीर आला ने मफरूज शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया।
फैसल आबाद में सानहा 9 मई और हसास इदारे के दफ्तर पर होने वाले हमले के खिलाफ रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। तमाम मसाले के उलमा ने शिरकत की। पाकिस्तान सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान शरीक हुए। फैसलाबाद में आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए रैली। जमात इस्लामी ने चिनियोट बाजार में रैली का एहतमाम किया। आफिया सिद्दीकी के हक में नारेबाजी, रिहाई का मुतालबा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में 12 चैम्बर्स की नीलामी। 65 ख्वाहिशमंद वकला ने दरख्वास्तें जमा कराई। सबसे महंगा चैम्बर 80 लाख में खरीदा गया। 12 चैम्बर्स की तामीर के बाद बकिया रकम से बार में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन की सहाफियों से मुलाकात। मुख्तलिफ मामलात पर सहाफियों से तजावीज ली। डीपीओ का कहना है सहाफी मुआशरे की आंख हैं, मिलकर बेहतरी के लिए काम करेंगे। ईद उल अजहा की आमद। चिनियोट की तीनों तहसीलों में मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। शहर में फैसलाबाद रोड पर मवेशी मंडी लगेगी। मंडियों में लाइव स्टॉक, हेल्थ समेत तमाम महकमों के कैंप मौजूद होंगे। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के साथ शहर की शाहराहों का दौरा। ताज़ीन और आराइश, सफाई और रोड साइड ड्रेन के इंतजामात की चेकिंग। मुख्तलिफ मुकामात पर फौरी डीसेटिंग का हुक्म। जिला इंतजामिया ने तलबा और तलबात के साथ बाग जना से साफ सरसब्ज फैसलाबाद मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, सीओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर भट्टू, डायरेक्टर हार्टिकल्चर जुहैर अहमद ने कचरा उठाकर किया। आगाही वॉक भी की गई। अहमदपुर सयाल में डीपीओ जंग की गढ़ महाराजा में गैर रवायती खुली कचहरी का इनेकाद। मसाइल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान भी मौजूद। साइलिन के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात जारी किए। सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम मोहब्बत पाकिस्तान सेमिनार। डिविजनल पब्लिक सेक्रेटरीट अमीनपुर बाजार में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। बोले मुल्क से मोहब्बत फरोग देकर ही तरक्की की जा सकती है। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का लायलपुर गैलेरिया में फैशन थीसिस डिस्प्ले। सनतकार मियां लतीफ, वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक समेत असातिज़ा और टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता शख्सियात की खसूसी आमद। तलबा ने मुख्तलिफ आइडियाज पर अपने थीसिस पेश किए। फैसलाबाद के दार अरकम स्कूल पीपल्स कॉलोनी ब्रांच में वालिदैन के लिए वर्कशॉप। जमात इस्लामी के जिला अमीर महबूब जमा भट्ट की खसूसी शिरकत। वालिदैन को बच्चों की तालीम और तरबियत से आगाह किया गया।